Hello friends, welcome to my YouTube channel Anatomy Simplified. Introducing myself, I am Vimal Gupta, physiotherapist and anatomist, and today I am going to simplify and discuss the topic muscles of mastication. What do you mean by mastication? Mastication is the process in which the food particles are broken down into smaller fragments in the oral cavity. Mastication का मतलब हिंदी में है खाने को चबाना, च्यू करना, ताकि जो फूड है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड इजीली. सो जो मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं मैंडिबल को मूव करने में ताकि it breaks down in the food into the smaller fragments are called as muscles of mastication. जो मांसपेशियां mastication में हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं muscles of mastication. But before starting the muscles of mastication, I would love to explain you few important points which are necessary for the basic knowledge of the muscles of mastication. This is the lateral view of the skull showing the frontal bone. This is the parietal bone. This pinkish is the temporal bone. This is the zygomatic bone. This is maxilla and this is nasal bone. अब maxilla and this is mandible. This is head of mandible. This is mandibular notch और आगे coronoid process आती है. पीछे की तरफ यहाँ पे we have the occipital bone. Now maxilla की the process which goes towards the frontal bone is called as the frontal process and which is directed towards the zygomatic bone is called as the zygomatic process of maxilla. This is the zygomatic bone. Zygomatic bone की भी एक process होती है. This is called maxillary process. Both these articulate with each other to form the zygomatico-maxillary suture, which forms the this is orbit which forms the infraorbital margin. ठीक है, ये zygomatic arch है. zygomatic arch के ऊपर वाला एरिया, this area is called as the temporal fossa. इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल फोसा बोलते हैं. अगर मैंडिबल को हटा दें तो zygomatic arch के नीचे वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है, ये टेम्पोरल बोन है. दिस पर्पल वन इज द स्फेनॉइड, rather it is a part of sphenoid. This is called as the greater wing of sphenoid. ये चार बोन्स मिलके एक जॉइंट बनाती हैं, एच शेप सूचर बनाती हैं. इसको हम टीरियन बोलते हैं, which lies in the floor of the temporal fossa. ठीक है जी. नेक्स्ट में अब ये zygomatic arch है. इसके ऊपर वाला पोर्शन इज कॉल्ड टेम्पोरल फोसा और नीचे वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है, ये मैक्सिला की इंफ्राटेम्पोरल सरफेस है. यहाँ पे एक रफड इंप्रेशन होता है, इसको मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी बोलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टेरिगोइड. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्फेनॉइड बोन. दिस इज कॉल्ड एज टेरिगोइड प्लेट. एक अंदर वाली तरफ होती है मीडियल टेरिगोइड, बाहर वाली तरफ होती है लेटरल टेरिगोइड प्लेट. इसमें हमने क्या किया हुआ है, रेमस ऑफ मैंडिबल को रिमूव कर दिया. And we can see the infratemporal fossa and temporal fossa, they are communicating with each other through a gap deep to the zygomatic arch. मतलब zygomatic arch के डीप अंदर एक गैप होता है जहाँ पे टेम्पोरल और इंफ्राटेम्पोरल फोसा आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ये फ्रंटल व्यू है स्कल का, which shows the frontal bone. These are orbital openings. This is piriform shaped nasal aperture and this is the lower part of face including maxilla and mandible. ठीक है जी. अब ये है maxilla. Maxilla की ये process which is directed towards the zygomatic bone is called as the zygomatic process of maxilla and this is called as zygomatic bone itself. दिस इज द इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल. इसको हम नॉर्मा बेजेलिस कहते हैं. ये एंटीरियर पोर्शन है एंड दिस शोज द टीथ, अपर टीथ एंड दिस इज द हार्ड पैलेट. ठीक है, हार्ड पैलेट के पीछे ये दो नेजल कैविटीज हैं, ये वोमर है. ये येलो वाली बोन इज द स्फेनॉइड बोन.
स्फिनॉइड बोन की एक ये प्लेट है, इसको मीडियल टेरिगोइड प्लेट कहते हैं, दूसरी वाली प्लेट को हम लेटरल टेरिगोइड प्लेट कहते हैं। ये सारा का सारा है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। दिस होल इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। अब दिस इज द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जाइगोमेटिक आर्च के नीचे वी हैव द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा। अब यहाँ पे एक लाइन में एलिवेशन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं लीनियर एलिवेशन। इस एलिवेशन का नाम है इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। इंफ्राटेम्पोरल क्यों? क्योंकि ये इंफ्राटेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट है। क्रेस्ट का मतलब है लीनियर एलिवेशन, किसका है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड का है। तो दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज पॉइंट्स? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जिनमें कुछ पोर्शन से डिफरेंट मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ओरिजिन करती है और इंसर्ट करती है। तो अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कौन सी कहाँ पे इंसर्ट कर रही है और कौन से पॉइंट्स क्या है। ठीक है। नाउ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन विच मूव्स द मैंडिबल ड्यूरिंग मैस्टिकेशन एंड स्पीच, जो कि खाना चबाने में भी और बोलने में भी मैंडिबल की मूवमेंट करवाती हैं, उन मसल्स को बोलते हैं हम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो टोटल 4 मसल्स हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। इन चारों के नाम आपको याद करने हैं। फर्स्ट मसल इज कॉल्ड एज मैसेटर, सेकंड इज कॉल्ड टेम्पोरालिस, थर्ड इज कॉल्ड एज मीडियल टेरिगोइड एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज लेटरल टेरिगोइड। देखो, टेम्पोरालिस का मतलब कहीं ना कहीं टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड है, टेम्पोरल फॉसा से रिलेटेड है। टेरिगोइड का मतलब कहीं ना कहीं जो टेरिगोइड प्लेट्स मैंने बताई थी उनके साथ रिलेटेड है। ठीक है। तो दीज आर दी 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। वी विल स्टडी द ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ ऑल दीज 4 मसल्स इन डिटेल। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज, ये सारी की सारी मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? उस नर्व का नाम है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व किसकी ब्रांच है? ये 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच है। 5th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? 5th क्रेनियल नर्व इज द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल, ट्राई का मतलब 3, एक जैसी 3 डिविजन हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, उसको नाम दे दिया ट्राइजेमिनल नर्व। दैट इज द 5th क्रेनियल नर्व। द 3 डिविजन्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व आर ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ठीक है जी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अभी मैंडिबुलर नर्व किसको सप्लाई करती है? सारी की सारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है। किस नर्व की ब्रांच है? ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। ट्राइजेमिनल 5th नंबर, 5वें नंबर वाली क्रेनियल नर्व है। ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैसेटर मसल। मैसेटर का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। मैंने तुम्हें बताया था कि इस बोन को हम जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं और इसको जाइगोमेटिक आर्च बोलते हैं। और आगे वी हैव दी जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो जो मैसेटर मसल है वो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से ओरिजिनेट करती है और जाइगोमेटिक आर्च से ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट करती है रेमस ऑफ मैंडिबल की आउटर सरफेस पे। ये मैंडिबल आ गया ना इधर, रेमस ऑफ मैंडिबल आ गया, उसके आउटर सरफेस पे मसल इंसर्ट करती है। ठीक है। इसका नाम है मैसेटर मसल। ओरिजिन का मतलब है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। द मसल इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, वी ऑल नो दैट। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, द पार्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द ओरिजिन, whereas the part which moves during the muscle contraction is called as the insertion। तो इसके 3 ओरिजिन है और 3 इंसर्शन है। 3 ओरिजिन में एक सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल, एक मिडल लेयर आ जाएगी, उसके डीप जाएंगे तो डीप लेयर आ जाएगी। सुपरफिशियल लेयर याद कर लेना कहाँ से ओरिजिनेट करती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। मिडल लेयर 2/3 of the deep surface and the posterior 1/3 of the zygomatic arch, और deep layer from the deeper surface of the zygomatic arch। ठीक है जी, मेजर ओरिजिन इसका zygomatic arch से ही है। ठीक है, ये you can see this diagram again, this is the zygomatic bone, this hole is the zygomatic arch and this is the zygomatic process of maxilla। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? zygomatic process of maxilla से ओरिजिनेट करती है और zygomatic arch से ओरिजिनेट करती है मैसेटर मसल। अब इंसर्शन कहाँ पे है? मैंने तुम्हें बताया था, it inserts into the ramus of mandible। सुपरफिशियल लेयर है वो याद रखना सबसे लोअर पार्ट में इंसर्ट करेगी, जो डीपर लेयर है वो सबसे अपर पार्ट में इंसर्ट करेगी, मिडल लेयर मिडल पार्ट में इंसर्ट करेगी। ठीक है जी। इसकी नर्व सप्लाई है मैसेट्रिक नर्व। मैसेट्रिक नर्व क्या है, किसकी ब्रांच है? ये मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। हमने बताया ना कि
ऑल द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आर बीइंग सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व ओनली। तो मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच है मेसेंट्रिक नर्व जो इसको सप्लाई करती है मेसेंट्रिक। व्हाट आर द एक्शंस ऑफ दिस मसल? दिस इज द मेन एक्शन ऑफ द मसल। ओरिजिन को कर दो फिक्स और इंसर्शन को मूव करो। जब ये पार्ट आप फिक्स करोगे, इसको मूव करोगे, तो मैंडिबल ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब है मैंडिबल पे कौन सी मूवमेंट हो रही है? वो एलिवेट हो रहा है। एलिवेट का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, डिप्रेस का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब मैसेटर कॉन्ट्रैक्ट करती है वो मैंडिबल को ऊपर की तरफ पुश करती है। दिस ऊपर की तरफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज द एलिवेशन। जब ये मैंडिबल ऊपर की तरफ पुश करेगा तो माउथ ओपन होगा या क्लोज होगा? माउथ विल क्लोज। तो इट हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ द माउथ, ताकि ये जो टीथ हैं ये नियर बाई आ सकें और फूड को चबा सकें। ठीक है जी। इट एलिवेट्स द मैंडिबल टू क्लोज द माउथ। आई होप समझ में आ गई होगी मैसेटर। नाउ सेकंड मसल इज टेम्पोरेलिस। मैंने तुम्हें बताया था कहीं ना कहीं इसका नाम टेम्पोरेलिस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड है। ठीक है। जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर वाले रीजन को हम टेम्पोरल फॉसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोरल फॉसा। तो ये मसल ज़्यादातर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? पूरे के पूरे टेम्पोरल फॉसा से ओरिजिनेट करती है। अगर इसकी शेप देखो तो ये फैन शेप है। फैन 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 तो आप लोगों को पता ही है फैन शेप क्या होता है। ठीक है। दिस इज फैन शेप्ड मसल। अब ये जाइगोमेटिक आर्च के डीप एक गैप था जिसमें टेम्पोरल फॉसा वाज कम्युनिकेटिंग विद द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा। इंफ्राटेम्पोरल फॉसा में आपको पता है मैंडिबल पड़ा है। ठीक है। तो ये मसल ओरिजिनेट करती है टेम्पोरल फॉसा से और ये एक थिकन्ड डीप फेशिया होता है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल फेशिया। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टेम्पोरल फेशिया एंड द टेम्पोरल फॉसा और जाके इंसर्ट कर जाती है मैंडिबल पे। मैंडिबल पे कहाँ पे? इस प्रोसेस को हम कोरोनॉइड प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द कोरोनॉइड प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो इट इंसर्ट्स इनटू द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है जी। अब ये देखो, इसके कुछ फाइबर्स वर्टिकल होते हैं, ये आगे वाले फाइबर्स हैं। तो एंटीरियर फाइबर्स आर वर्टिकल वेयर एज दी पोस्टीरियर फाइबर्स जो ओरिजिनेट करते हैं ये हॉरिजॉन्टल होते हैं और इनको क्योंकि जाना है और कोरोनॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट करना है। ठीक है। वर्टिकल फाइबर्स आगे वाले फाइबर्स हैं, जो पीछे वाले फाइबर्स हैं टेम्पोरेलिस मसल के, दे आर हॉरिजॉन्टल। अब ओरिजिन को कर दो फिक्स और इंसर्शन को करो मूव। जब ये ओरिजिन फिक्स हो जाएगा, इंसर्शन मूव करेगा तो मैंडिबल ऊपर की तरफ पुश करेगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। ठीक है जी। ऊपर की तरफ पुश करेगा, अगेन द सेम मूवमेंट, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल एंड द क्लोजर ऑफ माउथ। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल पड़ेगा, दे आर अटैच्ड अगेन टू द कोरोनॉइड प्रोसेस। जब पोस्टीरियर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंडिबल की पोस्टीरियर मूवमेंट होगी, पीछे की तरफ मूवमेंट होगी। जो पीछे की तरफ मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल और रिट्रूजन ऑफ मैंडिबल। तो the posterior fibers of the temporalis muscle they produce the retrusion of mandible। ठीक है जी। ओरिजिन पढ़ लेते हैं। टेम्पोरल फॉसा एक्सक्लूडिंग जाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल फेशिया, इंसर्शन इनटू द कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस के साथ साथ थोड़ा सा ना एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल भी आ जाता है। इसका जो इंसर्शन है वो एक्सटेंड करता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल का। ठीक है जी। दिस इज द इंसर्शन ऑफ द टेम्पोरेलिस मसल। This was about the origin and insertion of the temporalis muscle। ठीक है जी। You can see this diagram is very clear। ये डायग्राम मैंने ग्रेज एनाटमी से उठाए हुए हैं, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं ग्रेज एनाटमी में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स हैं। तो दिस इज द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द टेम्पोरेलिस मसल। नर्व सप्लाई, अगेन इट इज सप्लाइड बाई टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। मैंने बताया था मैंडिबुलर नर्व फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व की डिवीजन है और उसकी ब्रांचेस निकलती हैं जो सारी मसल्स को सप्लाई करती हैं। एक्शंस, इट एलिवेट्स द मैंडिबल, बता दिया तुम्हें। पोस्टीरियर फाइबर्स जो होते हैं वो रिट्रैक्ट करते हैं प्रोट्रूडेड मैंडिबल। ठीक है। प्रोट्रूजन का मतलब मैंडिबल की आगे की तरफ मूवमेंट, रिट्रूजन का मतलब पोस्टीरियर पीछे की साइड की तरफ मूवमेंट। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन साइड टू साइड ग्राइंडिंग मूवमेंट्स। नाउ कम टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल। टेरिगॉइड, कहीं ना कहीं टेरिगॉइड प्लेट्स, मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट होती है ना, तो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ही इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि मीडियल टेरिगॉइड प्लेट पे ओरिजिन इंसर्शन नहीं होते, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट पे ही होते हैं। अब लेटरल टेरिगॉइड मसल को सबसे पहले इस डायग्राम में देखो। दिस मसल इज द लेटरल टेरिगॉइड मसल। कितने पार्ट्स दिख रहे हैं जी?
दो पार्ट्स दिख रहे हैं, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। नाम दे दो अपर हेड एंड लोअर हेड। तो अपर हेड कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये वाली इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस है किसकी, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड की। ये यहाँ पे ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड था। ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड की एक इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट भी मैंने बताई थी। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस एंड इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। अब ये लोअर हेड आ गया। लोअर हेड कहाँ से ओरिजिनेट करता है, टेरिगॉइड प्लेट होती है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, उसकी बाहर की तरफ से। क्योंकि लेटरल टेरिगॉइड है तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, माने कि लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की बाहर की सरफेस से ओरिजिनेट करती है। अब ये मसल ओरिजिन कर दी, इंसर्शन कहाँ पे करती है, ये जाके इंसर्ट करती है मैंडिबल पर। मैंडिबल पर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है हेड के नीचे, उसको बोलते हैं हम टेरिगॉइड फोविया। क्या बोलते हैं उसको, टेरिगॉइड फोविया। इस डायग्राम में देखो, अब ये है कोरोनॉइड प्रोसेस। ये सबसे पहले मैंडिबल का व्यू कौन सा है, ये हम ओरल कैविटी के अंदर से मैंडिबल को देख रहे हैं बाहर की तरफ। आप यहाँ ओरल कैविटी में बैठे होगे, ठीक है, ये हेड ऑफ मैंडिबल है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल है, इसको मैंडिबुलर नॉच बोलते हैं। हेड के बाद आप लोगों में क्या आता है, हेड के बाद नेक आती है, वैसे ही मैंडिबल में हेड के बाद आएगी नेक। नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये छोटा सा डिप्रेशन होता है, इसको नाम बोलते हैं टेरिगॉइड फोविया। फोविया का मतलब है छोटा सा डिप्रेशन। इसको बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन और इसको बोलते हैं माइलोहायोइड ग्रूव। और इसके आगे देयर इज अ लाइन दैट इज कॉल्ड माइलोहायोइड लाइन, ये याद रखना। ये रेमस ऑफ मैंडिबल का पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल का इनर एस्पेक्ट है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड एज टेरिगॉइड फोविया, यहाँ पे इंसर्ट करती है लेटरल टेरिगॉइड मसल। अब एक जॉइंट बनता है यहाँ पे, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज टेम्पोरोमैंडिबुलर। क्योंकि ऊपर टेम्पोरल बोन है, नीचे मैंडिबल है, तो जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर एक डिस्क होती है, उसको आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। प्लस ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, दिस इज साइनोवियल जॉइंट, तो इसके बाहर इसका कैप्सूल होगा। तो ये मसल कहाँ कहाँ पे इंसर्ट करती है, टेरिगॉइड फोविया के साथ साथ इट ऑल्सो गेट्स इंसर्टेड इनटू द कैप्सूल ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट प्लस द आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क को हम लेटरल टेरिगॉइड का ही टेंडन मानते हैं, इज सपोज टू बी द कंटिन्यूड टेंडन ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड मसल। कहाँ पे इंसर्ट करती है, नेक ऑफ मैंडिबल पे, दैट इज द टेरिगॉइड फोविया प्लस आर्टिकुलर डिस्क एंड द कैप्सूल ऑफ टीएमजे। अब ओरिजिन को कर दो फिक्स और इंसर्शन को करो मूव। ठीक है, ओरिजिन को फिक्स करोगे, जब इंसर्शन को मूव करोगे बेटा ये पार्ट तो मूव करने से रहा, क्योंकि ये फिक्स है, जॉइंट है। ये पार्ट जब एंटीरियरली खींचेगा थोड़ा सा तो क्या करता है, रोटेट करता है, जो एंटीरियर पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट फिक्स है। व्हेन द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट रादर इट विल प्रोड्यूस द रोटेशन सच दैट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल विल मूव डाउन। जब एंटीरियर पार्ट नीचे जाएगा उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल प्लस ओपनिंग ऑफ माउथ। जब मैंडिबल नीचे की तरफ मूव करेगा तो माउथ कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और मैंडिबल डिप्रेस करेगा। ठीक है जी, तो ये इसके दो एक्शंस हैं। प्लस उसके अलावा क्या होगा, इट ऑल्सो मूव्स द मैंडिबल एंटीरियर एस्पेक्ट अ बिट on the anterior aspect, that causes the protrusion of mandible. So it also causes the protrusion of mandible, elevation depression plus the protrusion of mandible. ठीक है जी, ये देख लो दोबारा, ओरिजिन कहाँ कहाँ से है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से है, इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट से है, प्लस लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की लेटरल सरफेस से है। इंसर्शन कहाँ पे है, टेरिगॉइड फोविया के साथ साथ जॉइंट कैप्सूल के साथ साथ आर्टिकुलर डिस्क। क्या क्या एक्शंस है, माउथ को मैंडिबल को डिप्रेस करना प्लस मैंडिबल की प्रोट्रूजन करवाना। इट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व। ठीक है जी, इट कॉजेज द प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। अब याद रखना, एक साइड की मीडियल टेरिगॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक साइड की लेटरल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ताकि ग्राइंडिंग मूवमेंट्स हो सके। नाउ कम टू द मीडियल टेरिगॉइड मसल। मीडियल टेरिगॉइड यानी लेटरल टेरिगॉइड प्लेट के मीडियल एस्पेक्ट से जो मसल ओरिजिनेट करती है उसको नाम दे दिया मीडियल टेरिगॉइड। ठीक है जी, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट है और एक ये वाला डीप पार्ट है। सुपरफिशियल पार्ट देखो, ये मैक्सिला की इंफ्राटेम्पोरल सरफेस है, यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्च थी, उसके नीचे इंफ्राटेम्पोरल फॉसा है। तो ये इंफ्राटेम्पोरल सरफेस से
एक मैक्सिलरी टिब्रोसिटी नाम की स्ट्रक्चर है। मैक्सिलरी टिब्रोसिटी का मतलब रफंड एरिया, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट करेगी इसकी सुपरफिशियल हेड। जो डीप हेड होगा या डीप पार्ट होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, लेटरल टेरिगोइड ब्लेड के मीडियल एस्पेक्ट से, अंदर वाले एस्पेक्ट से, और जाकर इंसर्ट करेगा रेमस ऑफ मैंडिबल पे। रेमस ऑफ मैंडिबल पे मैंने तुम्हें बताया था कि मैंडिबुलर फोरामेन के आगे माइलोहाइड लाइन है, इन दोनों के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे the medial pterygoid will insert. The muscle is running obliquely and inserts onto the ramus of mandible on the inner aspect just behind the mandibular foramen and the mylohyoid groove. ठीक है जी, ये देख लो, ये वाली मसल है मीडियल टेरिगोइड मसल, ये दोनों इसके ओरिजिन है और ये वाला पोर्शन इसका इंसर्शन है। दिस इज द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द मीडियल टेरिगोइड मसल। अब ओरिजिन को कर दो फिक्स और इंसर्शन को करोगे मूव, तो एक तो मैंडिबल ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा प्लस प्रोट्रूड करेगा एंटीरियरली, क्योंकि मसल इज ओरिजिनेटिंग एंटीरियरली एंड गोइंग पोस्टीरियरली, ओब्लिकली रन कर रही है, ये पीछे की तरफ रन कर रही है। ओरिजिन फिक्स करो, इंसर्शन को मूव करो, एक तो मैंडिबल आगे जाएगा और एक ऊपर जाएगा, ठीक है। इट कॉजेज द एलिवेशन प्लस द प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल, तो इट एलिवेट्स द मैंडिबल, इट प्रोट्रूड्स द मैंडिबल। अगेन द सेम थिंग कि एक साइड की मीडियल टेरिगोइड और एक साइड की लेटरल टेरिगोइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ग्राइंडिंग मूवमेंट्स होती हैं, साइड टू साइड मूवमेंट्स होती हैं। कौन सप्लाई करेगा, कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड अगेन विच इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है जी। अब कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं और कौन कौन सी मसल्स उनको प्रोड्यूस करती हैं, याद रखना। 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पढ़ी है हमने, मैसेटर पढ़ी है, टेम्पोरलिस पढ़ी है, मीडियल और लेटरल टेरिगोइड पढ़ी है। लेटरल टेरिगोइड इकलौती है जो डिप्रेशन कर रहेगी, ओनली एंड ओनली लेटरल टेरिगोइड विल कॉज द डिप्रेशन आउट ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ में एक्सेसरी मसल्स भी बहुत सारी होती हैं। तो लेटरल टेरिगोइड विल कॉज द डिप्रेशन, रेस्ट ऑल द मसल्स विल कॉज द एलिवेशन। ऐसा ही प्रोट्रूजन और रिट्रूजन के साथ है। प्रोट्रूजन यानी आगे वाली मूवमेंट होती है मैंडिबल की, रिट्रूजन पीछे वाली मूवमेंट होती है, ठीक है। रिट्रूजन सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरलिस मसल करवाती है, उसके पोस्टीरियर फाइबर्स करवाते हैं, रिवाइंड करके सुन लो, मैंने फिर बताया, ठीक है। दी पोस्टीरियर फाइबर्स दे आर लाइंग हॉरिजॉन्टली, दे आर इंसर्टिंग इनटू द कॉर्नोइड प्रोसेस एंड दे विल कॉज द रिट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। बाकी सारी की सारी प्रोट्रूजन करवाएंगी, दोनों मीडियल और लेटरल टेरिगोइड। लेटरल मूवमेंट का मतलब ग्राइंडिंग मूवमेंट्स, दोनों टेरिगोइड्स, एक साइड की मीडियल टेरिगोइड और दूसरे साइड की लेटरल टेरिगोइड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड मूवमेंट, that is the lateral movement. So this was all about the today's discussion. Thank you so much for watching and keep supporting please.